Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is Unit 2 Geography or Environment. Key highlights: environment and its component, harmful effects of human activities on the environment, are changing environment, sustainable development. Environment and its component. Environment means the surroundings that affect and influence all organisms or living things. We see around us a natural environment and a human-made environment. The human-made environment includes infrastructure like roads, buildings, factories, bridges, canals, parks. It includes the activities, creations, behavior, and relationship among human beings. Things under the non-living category include matter and energy. Example: water, air, soil, rocks, as well as temperature, humidity, and sunlight. Collectively, they are called the physical or abiotic components of the environment. The biological or the biotic components of the environment includes plants, animals and microorganisms. तो बच्चों, environment क्या होता है? environment का मतलब होता है जो हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती है एंड इन्फ्लुएंस करती है. हम अपने आसपास काफ़ी सारी नेचुरल थिंग्स देखते हैं और काफ़ी सारी मैनमेड थिंग्स देखते हैं. अब मैनमेड थिंग्स क्या होती हैं? जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, फ्लाईओवर हो गए, टेबल, चेयर, ये सब किसने बनाया है? ये सब मैन मेड बनाया, मतलब मैन ने बनाए हैं. और नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होगी? जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, सनलाइट है, एक्सेट्रा. ठीक है, जितने भी आपके नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं, मैटर्स हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, एयर, सॉइल, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं हमारे इकोसिस्टम के. और जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे कि हम हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं एनवायरनमेंट के. There is an interdependence of the two components. The biological environment depends on the physical environment for its various needs. The physical environment sustains the biological environment. The two interact with one another in the biosphere, exchanging matter and energy. Groups of plants and animals depends on each other for shade, support, food requirements. In the biosphere, in a given area, plant life, animal life and their physical environment with their interaction form an ecosystem. The growth and life in an ecosystem could be dependent on physical conditions like sunlight, temperature, rainfall, elevation, soil and slope of the land, to name a few. We may use the term biomes for describing the different ecosystem on the basis of their plants and animal life. अब बच्चों, हमारे जो लाइफ में है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, वो क्या है? ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं. जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो डिपेंड होता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पे, ताकि उसकी जो वेरियस नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके. जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सस्टेन करता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को. तो ये दोनों आपस में क्या करते रहते हैं? इंटरेक्ट करते रहते हैं. ठीक है, और ये सब कहाँ होता है? बायोस्फीयर में ही होता है, जिसमें मैटर एंड एनर्जी को आपस में एक्सचेंज किया जाता है. ठीक है, जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. आपको पता ही है, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, और जो एनिमल्स का डंग वगैरह होता है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, वो एज ए फर्टिलाइजर उनकी हेल्प करता है. ठीक है, तो एक तरह से एक दूसरे को ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. इसी तरह से हम ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो इसी इकोसिस्टम का पार्ट हैं और हम भी इसमें शामिल होते हैं या इसके अंडर ही आते हैं. Ecology is the science that studies the interrelationship between the various life forms and their environment. Each organism is suited to a certain habitat or immediate environment. The type of plants and animals found in a region are determined to a great extent by the physical environment. That is why we find coniferous trees in cold areas and broad-leaved vegetation in area of heavy rainfall and high temperature. Polar bears and reindeers are found in very cold regions, while giraffes and zebras are found in the tropical grasslands. तो बच्चों, इकोलॉजी जो होती है साइंस में, वो स्टडी करती है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, और उनके एनवायरनमेंट के साथ हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन करता है अपना एक हैबिटेट और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्या कर लेता है? अडेप्ट कर लेता है. ठीक है, कई टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, आप देखते हैं उनको अलग अलग जगह पे वो पाए जाते हैं. जैसे पोलर बियर्स हो गए, रेनडियर्स हो गए, वो आपको स्नो
हिल एरिया में या आपको ज़्यादा ठंड वाले एरिया में मिलेंगे, और जो जिराफ ज़ेब्राज होते हैं वो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेंगे। द डायनामिज्म ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ड्यू interconnection between physical and environment and biological environment both affect each other. The Earth's surface and landforms undergo changes continuously. The tall Himalayas that began forming some 60 million years ago rose to their present size about 2 million years ago. They are still rising and are being worn down continuously by rivers and glaciers. Variation in condition in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere cause changes in the biosphere. अब बच्चों हम अपने एनवायरनमेंट के डायनामिज्म के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरकनेक्शन होता है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को सस्टेन भी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जो अर्थ का सरफेस होता है उसमें आपने देखे होंगे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे चेंजेस से गुजरते हैं। जैसे आपने हिमालयाज़ को देखा होगा, माउंटेन्स को देखा होगा, ये कई साल पहले बनना शुरू हुए थे, अब आपने देखा होगा ये काफ़ी हाइट पकड़ चुके हैं, मतलब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और धीरे धीरे जो इनकी आइस है वो क्या होती है, मेल्ट होती रहती है, मतलब इनमें बर्फ़ जमती है, लेकिन टाइम के अनुसार वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और रिवर्स के थ्रू वो ओशन में चली जाती है। तो ये कंडीशन जो होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। नाउ ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, primitive man was vastly dependent on its environment for its need. They were gatherers and hunters. Gradually, as population increased, human activity, life, cultivation of crop also expanded. The ever-increasing needs has led to uncontrolled cutting of forest for firewood, construction, furniture, and paper manufacture. Land was cleared to set up industries and increase in cultivable land to feed the teeming millions and to provide housing. The destruction of forests deprived animals of their habitat. Humans killed animals in large numbers for food, entertainment, and to make various things from their skin, bones, meat, and teeth. Depletion of resources harmed the physical and biological environment. Human beings overuse the earth's resources indiscriminately without taking adequate steps to counter the danger involved in doing so. बच्चों जब शुरुआत हुई थी तो पहले इंसान क्या किया करता था, वो प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड होता था, ठीक है, सराउंडिंग्स पे, अपने एनवायरनमेंट पे वो टोटली डिपेंड होता था अपनी नीड के लिए। पहले पहले वो क्या करता था, हंटिंग किया करता था और कल्टीवेशन वगैरह उसने धीरे धीरे स्टार्ट की, उसने फसल उगाना स्टार्ट किया, फिर वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहता था। इस तरह से अपनी नीड्स के अनुसार उसकी जो मांग थी वो बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद उसने फायरवुड का इस्तेमाल किया, फायर से उसने फिर क्या किया, जंगलों को काटना शुरू किया, मतलब क्योंकि नीड होती थी, अगर आपको खाना बनाना है उस टाइम पे तो आपको लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी, लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, पेड़ों को काटना पड़ता था। इसी तरह से धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनी, कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुए, लोगों को लैंड चाहिए होते थे अपना घर बनाने के लिए, तो धीरे धीरे ये सब इंसानों ने शुरू किया पेड़ों को काटना ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिल सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाते थे पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लैंड जो था वो क्लियर होता जा रहा था क्योंकि पेड़ वगैरह कटते रहते थे, क्योंकि इंसानों को क्या बनानी होती थी, इंडस्ट्रीज़ बनानी होती थी, ठीक है, और उन्हें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी बनानी होती थी, तो हाउसिंग वगैरह के लिए भी उन्हें लैंड चाहिए होता था। तो ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट था, ये एनिमल्स को क्या हो गया, डिप्राइव हो गया, मतलब कुछ एनिमल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे, क्योंकि उनके जो हैबिटेट है वो इंसानों के द्वारा डिस्ट्रॉय की जा रही थी। और इस तरह से एनिमल्स जो थे वो हंट भी किए जाते थे इंसानों के थ्रू, मतलब एनिमल्स को इंसानों द्वारा मारा जाता था उनके मीट के लिए या उनकी स्किन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरह से डिप्लीशन ऑफ सोर्सेज जो है वो हार्म करने लगा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, और ह्यूमन बीइंग जो है वो ओवर यूज़ करने लगा हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है। नाउ फैक्ट फाइल, रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर यूज्ड बाय ह्यूमन टू फुलफिल देयर नीड्स। They range from water, soil, plants and animals to metallic and non-metallic minerals and energy fuels. While some resources are renewable or reusable, others are non-renewable. Important minerals and fossil fuels like coal, oil and natural gas are non-renewable. The sun, wind, tides and rain are some of the renewable sources of
एनर्जी। बच्चों रिसोर्सेज से मतलब क्या होता है, ये नेचर के द्वारा हम ह्यूमन बींग्स को गिफ्ट है, ठीक है, ताकि हम अपनी नीड्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। जैसे वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं, ठीक है, और इन्हें ही एनर्जी फ्यूल्स भी कहा जाता है। कुछ रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपके आते हैं कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है, और सन, विंड, टाइड्स, ये सब क्या है, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, किसके, हमारे एनवायरनमेंट के, ये हमें डेली मिलते रहते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस एज वेल एज नेचुरल हजार्ड्स दैट काउज हैवॉक, कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनिक eruptions, landslides, floods, hurricanes and droughts risk and damage both life and prosperities। अब फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है ह्यूमन के इंटरफेरेंस से, क्योंकि हम लोग माइनिंग करते हैं, हम लोग टनल्स वगैरह बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हर्ट होता है, उनकी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं, वोल्केनिक इरप्शन आते हैं, इवन लैंडस्लाइड, फ्लड्स वगैरह भी होते हैं। Problems of environment. Human did not act in a responsible way while using its environment. Some of the factors responsible for environmental changes are inappropriate disposal of harmful waste, were health hazards as they spread disease and destruction through pollution. Overuse of chemical fertilizers and pesticides harmed land, animals, birds and humans. Deforestation, cutting down of trees and removal of the vegetation cover led to soil erosion, removal of the fertile layer of topsoil and loss of soil fertility. Consequently, the amount of rainfall also reduced in many parts of the world. अब बच्चों हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे वजह से हमारे एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, हम इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल करते हैं अपने वेस्ट का, मतलब इधर उधर हमने लैंड्स में कुछ भी अपने कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक के बारे में आपको पता है, प्लास्टिक जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हम उसे अच्छे से डिस्पोज नहीं करते, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा होता है। ओवर यूज़ करते हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जिससे क्या होता है, लैंड्स और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन्हें भी इफेक्ट पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब एक्सेस अमाउंट में हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं ट्रीज़ की, जिससे जो सॉइल होती है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, फिर सॉइल इरोजन भी बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाता है काफ़ी पार्ट्स में। नाउ लेट्स थिंक, डू यू नो व्हाट रिसाइकलिंग मीन? Why do we celebrate World Environment Day on 5th of June every year? बच्चों आपको ये सोचना है और ये पता लगाना है कि हम रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है और हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं 5th of June every year. Now let's think, do you know what recycling means? Why do we celebrate World Environment Day on 5th of June every year? बच्चों ये आपको पता लगाना है कि हम जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5th of June को क्यों मनाते हैं, और आप रिसाइकलिंग से क्या मतलब समझते हो, तो ये आपको पता लगाना है और आपको इसका आंसर खुद से ढूंढना है। नाउ न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियो एक्टिव डस्ट, लिविंग मैनी एरियाज uninhabitable for centuries. Aircrafts burn a fuel, add carbon dioxide and other gases to the atmosphere and contribute to the greenhouse effect. Factories' chimneys emit a range of noxious fumes into the air. Oil spills from super tankers damage seabeds and aquatic creatures. Cars emit poisonous gases leading to global warming. Nuclear power station dump radioactive liquid waste straight into the sea. Use of coal in power station causes acid rain and global warming. Rivers are polluted by industrial waste and farming chemicals. तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाया गया है कि कैसे इन सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूट हो रहा है। Air pollution, water pollution, adverse effects of modern way of life to our environment in the name of progress and material development. We need to practice sustainable developments. Now, several fertile areas were transformed into wastelands and deserts. On the other hand, cultivable land in many places deteriorated due to over irrigation and water logging. Several streams dried up
owing to the diversion of their waters for irrigation and hydel power projects. Scientists estimate that half the pollution on Earth has been caused by rapid industrialization in the 20th century. Water gets polluted due to oil spills. Industries burn a lot of fossil fuels which produce excess amount of carbon dioxide that disturbs the balance of various components in the air. The increase in the amount of carbon dioxide in the air causes global warming. This rise in global temperatures result mainly from air pollution. बच्चों काफ़ी सारे फर्टाइल्स एरिया जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं किसमें, वेस्ट लैंड में और डेजर्ट में, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो कल्टिवेबल लैंड्स होता है उन्हें भी डिटोराइट कर दिया जाता है, ठीक है, ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग के थ्रू. तो काफ़ी सारा जो फसल वाला जो खेत होती है, जो लैंड होता है, वो क्या हो जाता है, वो ओवर इरिगेशन के थ्रू, वाटर लॉगिंग के थ्रू डिस्टर्ब हो जाता है और वो फसल उगाने लायक नहीं बचता. कई सारे स्ट्रीम जो होते हैं वो ड्राई हो चुके होते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा ले लिया जाता है. और यूँ भी कह लो कि उन एरियाज़ में पानी, रेनफॉल की कमी की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं. साइंटिस्ट ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हाफ ऑफ द पोल्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट होगी 20th सेंचुरी में. किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारा इंडस्ट्रीज़ जो रैपिडली बढ़ रही है उसकी वजह से हमारा एयर, हमारा वाटर जो हो रहा है वो पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज से काफ़ी सारा धुआं जो होता है वो हमारे एयर को पोल्यूट करता है और काफ़ी सारा जो ऑयल होता है वो वाटर में जा करके, जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर में मिलके वाटर को भी क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं. सस्टेनेबल developments. A balanced approach needs to adapt between natural and human environment to minimize environment-related problems. We need to follow guidelines for utilizing nature's resources in a sensible manner. Earth is the only planet known to support life and we need to live on it in a sensible manner, keeping in mind that our resources are limited. Humans have the responsibility to nurture all plants and animal life on Earth in the interest of their own survival. They should not stress the environment or cause irreparable harm. They must check the unprecedented growth of population and the rapid increase in production and consumption which puts undue stress on the biosphere. अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बैलेंस अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है. अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे. अब आपको पता है कि अर्थ ही एक लौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ जो है सस्टेन करती है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि हम अपनी अर्थ को अच्छे से संभाल के रखें. हम अपना जो वेस्ट है उसे इधर उधर ना फेंकें, हम कोशिश करें कि उन्हें रिसाइकल कर सकें, उन्हें रीयूज़ कर सकें, ठीक है, ताकि वो जो सामान है वो हमारे यूज़ हो जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा पोल्यूट ना हो. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हमें इन्हें भी साथ लेकर चलना है. हम इनके भी जो एनवायरनमेंट है, जो इनकी लाइफ है, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपनी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ की वजह से. Sustainable development is a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा विकास है जो हम अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचें. जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हम उनकी नीड्स के बारे में भी सोचें, ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम उनके ट्रीज़ को, अपने उनके जंगल्स को ख़त्म कर देंगे तो वो क्या होगा, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी विलुप्त हो जाएंगे. तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.